Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. नमस्कार। अ, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और एपिलेप्सी, इसे हिंदी में मिर्गी या अपस्मार भी कहते हैं। मिर्गी दिमाग में पैदा होने वाली तरंगों के कारण होने वाली बीमारी है। कई बार कुछ जाने पहचाने कारण जैसे ट्यूमर, इन्फेक्शन आदि, और कई बार अज्ञात कारण ये तरंगे पैदा होती हैं, पूरे दिमाग में फैल जाती हैं और इससे झटके बनते हैं। ये झटके दिखने में बहुत भयावह होते हैं, खराब होते हैं, और इसी से एपिलेप्सी के प्रति एक स्टिग्मा पैदा होता है। मोटे तौर पे मैं आपको मिर्गी के बारे में यही से शुरुआत करना चाहूँगी। धन्यवाद। Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीजर दिमागी तरंगों के कारण होता है। कई बार तरंगे दिमाग के किसी एक हिस्से से शुरू होती हैं और पूरे ब्रेन में फैल जाती हैं, और कभी-कभी ये पूरे ब्रेन में एक साथ आती हैं। तो इस तरह से सीज़र भी मोटे तौर पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो पूरे शरीर में एक साथ आता है, जब पूरे दिमाग में तरंगें एक साथ आती हैं, तो सीज़र भी पूरे शरीर में एक साथ आता है। इसमें होता है हाथ-पैर का कड़क होना, आँखों का घूम जाना, दाँत-कड़ी का बंद जाना, ये होता है जनरलाइज़्ड सीज़र। और इसे पुराने ज़माने में ग्रैंड माल एपिलेप्सी कहा जाता था। और दूसरा होता है कि दिमाग के किसी एक हिस्से से तरंग उठे और पूरे दिमाग में फैल जाए। तो जिस हिस्से से तरंग उठती है, जैसे उदाहरण के लिए यदि हाथ के हिस्से से तरंग उठी तो पहले थोड़ा-सा हाथ काँपेगा। यदि चेहरे से उठी तो थोड़ा-सा चेहरे में टेढ़ापन आएगा। यदि आवाज़ के एरिया से उठी तो आवाज़ लड़खड़ा जाएगी। आँखों से उठी तो आँखों में एक अजीब-सा सेंसेशन आएगा। तो इस तरह से जहाँ का एरिया वहाँ का मैनिफेस्टेशन आता है और इसे हम फोकल सीज़र कहते हैं। तो ये इस तरह से सीज़र होते हैं, जनरलाइज़्ड या फोकल, पूरे शरीर में आने वाले या एक हिस्से में आने वाले। What is epilepsy? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि झटके का कारण ज्ञात और अज्ञात हो सकता है। जैसे यदि दिमाग में कोई ट्यूमर है, कोई गठान है, कोई इन्फेक्शन का फोड़ा हो गया है, या कोई चोट का निशान है, या पैदा होते समय बच्चे को ऑक्सीजन नहीं पहुँची, तो इससे जो झटका मिला, तो वह ज्ञात कारण है। लेकिन जब कारण न मिल सके, तो इसे अज्ञात कारण कहते हैं। और इस अज्ञात कारण के यदि 2 या अधिक झटके आएँ, तो उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। 2 or more unclassified seizures are known as epilepsy. What are the different types of seizures and do they affect people differently? Yes. See, which type of epilepsy people can recognize very easily? Generalized epilepsy. Because anyone can recognize, because tightening of body is occurring, and teeth clenching, eye uprolling is there, and some sound is there. But when focal epilepsy is there, so for example, some abnormal movement of hand only, or for example, some like this type of sounds. It is difficult to identify focal epilepsy. And there are some other types also, like absence epilepsy. In absence, it is just a cutoff. For example, the child sees for a few seconds non-stop to one side and then suddenly stops. This is absence, means being absent-minded, like for few seconds. So recognizing focal epilepsy and absence seizure needs a specialist doctor. Generalized epilepsy, anyone can recognize and identify. I see.
Now, can you explain what causes epilepsy? Is there always a known cause? Tightening of skin, eye uprolling, teeth clenching, and later on, sometimes bladder bowel incontinence are signs and symptoms of generalized seizures. Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? It is very important for caregiver to recognize these symptoms and to work on it, because we know that seizures start from waves from brain. So if we want to release the tightened hands and we apply pressure, we can break the bones. यदि हम कड़क किए हुए हाथ पैरों पर ताकत लगाते हैं तो हम मरीज की हड्डियां तोड़ सकते हैं। हम यदि उसके दांतों को किसी चम्मच आदि की सहायता से खोलने की कोशिश करते हैं तो या तो हम हमारा हाथ डैमेज कर लेंगे या मरीज के दांत तोड़ देंगे। हमें पता है कि दिमाग की तरंगें कुछ क्षणों में अपने आप ही रुक जाएंगी, तो इसलिए केयर गिवर को केवल मरीज को करवट से लिटा देना है, उसे सुरक्षित स्थान पर लिटा देना है, उसकी गर्दन में कोई चोट ना आए, उसके सिर में कोई चोट ना आए, यदि संभव हो तो उसके टाइट कपड़े ढीले कर देना है और कुछ क्षणों तक इंतजार करना है, झटके स्वतः ही रुक जाएंगे। चूंकि इस समय मरीज होश में नहीं है, तो केयर गिवर की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है कि उनके दांतों में कुछ ना डाले, उसके कड़क हाथ पैरों को खोलने की कोशिश ना करे। मरीज का कभी भी जूते सुंघाकर, प्याज सुंघाकर या लोहे की छड़ टच कराकर अपमान नहीं करना चाहिए। जब तरंगे दिमाग से उत्पन्न हुई हैं, तो शरीर में इस तरह का प्याज सुंघाना, जूता सुंघाना या लोहा छुआना, ये करके हम सिर्फ मरीज का अपमान कर रहे हैं। इससे किसी भी तरह का फायदा नहीं होता है। झटका तो स्वतः ही कुछ क्षणों में रुक जाएगा। हमें सिर्फ मरीज को चोट से बचाना है, किसी तरह का ट्रॉमा नहीं होने देना है। यदि मरीज असुरक्षित स्थान पे है, तो उसे सुरक्षित स्थान पर लिटा देना है। Now, let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? जैसे यदि आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, तो इसके मैनिफेस्टेशन दिखाई नहीं देते। लेकिन ये आपके साथ हमेशा है। आप कभी भी बीपी नपवाइए वो अधिक होगा, शुगर नापेंगे वो अधिक होगा। लेकिन एपिलेप्सी कई दिनों में, कई हफ्तों में या कई महीनों में एक बार आती है। पर यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यह दिखती बहुत भयावह है। आंखों का घूम जाना, हाथ पैर का कड़क हो जाना, हथकड़ी का बंध जाना, इसके कारण यह भयावह दिखती है। और जब कोई चीज भयावह दिखती है तो भय पैदा करती है। जब भय पैदा करती है तो हम कई तरह की नाना प्रकार की चीजों को, स्टिग्मास को इसके साथ जोड़ लेते हैं, जैसे यह दैवीय बाधा से होती है। तो ऐसे में उचित उपचार लेने की बजाय मरीज की झाड़ फूक में विश्वास करने लगते हैं और हमें तो पता है कि कुछ क्षणों में झटका रुक जाएगा। आप जो भी करेंगे आपको लगेगा आपके उसी के कारण हुआ है। तो इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जूते सुंघाना, प्याज सुंघाना, लोहे की रॉड टच करना, ये सब चीजें भी जब आप करेंगे तो पेशेंट का सीजर रुक जाएगा, क्योंकि हमें पता है उसे कुछ क्षणों में रुकना है और हम इसे जोड़ लेंगे कि हमने जो भी उपचार किया, वट एवर द ट्रीटमेंट यू हैव गिवन, ये उसके कारण हुआ है। जबकि आपको केवल मरीज को सुरक्षित स्थान पर लिटाना है और जितना हम गलत बातों पर, अनुचित बातों पर भरोसा करते हैं, उस तरफ जाते हैं, बीमारी पुरानी होती जाती है, कठोर होती जाती है, उपचार कठिन होता जाता है। तो इसलिए जितना जल्दी संभव हो, मरीज का मेडिकल उपचार कराना चाहिए, इसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, जिससे कि बीमारी के कारणों की पड़ताल हो सके। उदाहरण के लिए यदि मरीज के ब्रेन में एक ट्यूमर है और उसे झटके आ रहे हैं और समझिए कि आप उसमें झाड़-फूँक करा रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है मरीज का। तो इसलिए हमेशा पहला झटका आते ही तुरंत डॉक्टर का रुख करना चाहिए। How does this stigma affect people with epilepsy? मैंने आपको बताया कि पहली चीज तो जो इस स्टिग्मा से नुकसान होता है, मरीज को उचित उपचार नहीं मिलता। दूसरा, हम जानते हैं एक उचित सम्मान हर मरीज का या हर व्यक्ति का हक होता है।
इस स्टिग्मा के कारण बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। कई लोग इसे छुआ-छूत का रोग भी समझते हैं कि यदि अमुक व्यक्ति को मिर्गी आती है तो इससे मेरे बच्चे को तो नहीं लग जाएगी। इसलिए या इसे सँभालना कठिन होगा, इसलिए हमारे बच्चों को, मिर्गी के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, उनकी पढ़ाई रुक जाती है। मिर्गी से ग्रस्त लड़की से लोग शादी नहीं करना चाहते कि कहीं बच्चों में ये रोग तो नहीं आ जाएगा। मिर्गी से ग्रस्त मेल्स, पुरुषों से भी लोग शादी करने से डरते हैं कि आगे की जनरेशन में आएगा या यह घर कैसे चलाएगा, ये कमाएगा कैसे? और जब किसी को नौकरी के स्थान पर झटका आ जाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। जबकि हम ये जानते हैं कि नौकरी में केवल ऊँचे स्थानों पर जाने में, आग के पास काम करने में या हेवी मशीनरी चलाने में या ड्राइविंग करने में ही मिर्गी के व्यक्तियों को रिस्क है। अदरवाइज़ ये लोग भी उतने ही योग्य होते हैं, जितना मिर्गी से ग्रस्त कोई अन्य व्यक्ति। केवल एक ही कंडीशन होती है कि बार-बार झटके आने से यदि लंबे समय तक उपचार न लिया जाए और दिमाग कमज़ोर हो जाए, तब इन लोगों की क्षमता, बौद्धिक क्षमता दूसरे लोगों से कम होती है। अन्यथा मिर्गी के व्यक्ति भी दूसरे लोगों से के बराबर ही क्षमताओं से काम करते हैं। उदाहरण बड़े-बड़े इतिहास में भी पड़े हुए हैं, जैसे जूलियस सीज़र, जॉन टी रोड्स, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया। Absolutely. Now let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? जी, सीज़र के उपचार में देखिए 2 तरह से उपचार होता है। पहला, जब सीज़र आया है तब क्या करना है? और दूसरा होता है कि आगे सीज़र ना आए इसके लिए क्या करना है? और तीसरा होता है कि सीज़र के कारण की पड़ताल करना। तो जो पहली चीज़ होती है कि जब सीज़र आया है तो क्या करना है? तो मरीज़ को करवट से लिटा देना है, सुरक्षित स्थान पर लेटा देना है, उसके हाथ खोलने, दाँत खोलने का प्रयास नहीं करना है। थोड़ी देर में सीज़र स्वतः ही रुक जाएँगे। पर एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद चौथा, लगातार झटके आते जाते हैं। तो इसमें मरीज़ दोबारा ठीक ही नहीं होता, उसके झटके लगातार होते हैं। ऐसे में आपको 108 एम्बुलेंस बुलानी है और जल्दी से जल्दी किसी पास के अस्पताल ले जाना है, क्योंकि स्टेटस एपिलेप्टिकस में ब्रेन की डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो हुआ तुरंत उपचार। यदि आपके पास हमारे पास एक नाक का स्प्रे होता है, जिसे हम मिडाज़ोलाम का स्प्रे कहते हैं। यदि ये स्प्रे आपके पास है, तो वो मरीज़ को डाल दें, मुँह से कोई दवा देने का प्रयास ना करें, क्योंकि मरीज़ बेहोश है। तो ये हुआ तुरंत वाला उपचार। लंबे समय का यदि आपका मरीज़ एपिलेप्सी का पेशेंट है, तो उसका जो भी उपचार चल रहा है, उसे नियमित दें, बिना डॉक्टरी सलाह के दवा को बंद करने या कम करने का प्रयास ना करें। जितने समय में आपके फ़ॉलो-अप पीरियड्स है उसमें रेगुलर दिखाएँ, क्योंकि आपकी एक भी गलती मरीज़ को किसी असुरक्षित स्थान पे यदि झटका आता है तो उसके जीवन के साथ रिस्की हो सकती है। तीसरी चीज़ होती है कारण को ढूँढना। कारण का ढूँढना न्यूरोलॉजिस्ट या फिज़िशियन, जो भी आपके डॉक्टर हैं, न्यूरोसर्जन, उनका काम होता है। तो कारण ढूँढने के लिए आप केवल अपने डॉक्टर तक पहुँचे, वो जो जाँचें कराते हैं जैसे एमआरआई स्कैन, ईईजी, ये या ब्लड बायोकेमिस्ट्री, इनके थ्रू वो कारण को ढूँढने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कारण का उपचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना झटकों का उपचार। तो कारण के लिए जो कारण निकलता है, जैसे ट्यूमर है, तो ट्यूमर का इलाज करना है, कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज करना है, स्कार है तो स्कार के इलाज अलग होते हैं। आज के ज़माने में एपिलेप्सीज़ की सर्जरीज़ भी होने लगी हैं। यदि आपके झटके दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो हमें एपिलेप्सी सर्जरी पे काम करना है। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो ये 3 स्टेप में मरीज को उपचार लेना चाहिए। That's a great tip, doctor. What other lifestyle adjustments can help someone manage epilepsy? जी। एपिलेप्सी में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़, समय पर सोना है, समय पर जागना है। यदि आप नींद में अनियमित हैं, यदि आप कम सोते हैं या अधिक भी सोते हैं, दोनों में ही आपको सीज़र्स आने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक से मेरा मतलब है, कई लोग बेटाइम रात के 3 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे तक सोए रहते हैं। ये अनियमितताएँ भी सीज़र लाती हैं। देखिए, सोने का एक समय होता है, 10-11 बजे तक सो जाइए, सुबह 6-7 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए। तो ये हुआ स्लीप की नियमितता।
दूसरी भूख की नियमितता, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन समय पे कीजिए। अनियमित मत होइए कि आज मैं लेट हो गया काम पर तो मैंने भोजन नहीं किया, आज मैंने व्रत रख लिया इसलिए मैंने भोजन नहीं किया। भोजन की अनियमितताओं से भी झटके आते हैं। तीसरा तनाव, तनाव की अधिकता। जब आप तनाव लेते हैं तो आपके जो केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं ये झटकों के लिए आपको प्रोन करते हैं। और चौथा होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिवली हम एक्सरसाइज को जब जीवन में अपनाते हैं तो डेफिनेटली मिर्गी के मरीज में हमको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। जैसे वॉक को प्रमोट कीजिए, सुबह की ताजी हवा में घूमने जाइए, कसरत कीजिए और अपनी बीमारी को अपने से दूर रखिए और दवाएं समय पे लीजिए। खाना भूल जाइए पर दवाइयां मत भूलिए। Thank you so much, Doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? जी, जब पेशेंट को सीज़र आ रहा है, तो उदाहरण के लिए कई बार हम सड़क के किनारे सीज़र आ गया, तो हम सोचते हैं कि हम इसे जल्दी से पास के मकान में ले जाएँ, पर हम उतनी दूर ले जाने में पेशेंट को दिक्कत है। तो आप सड़क किनारे ही एक सुरक्षित स्थान देख के, आप ये मत देखिए कि कहाँ हैं आप। आप एक सुरक्षित स्थान देखिए और मरीज को करवट से लिटा दीजिए। अब इस समय सबसे ज़्यादा संभावना है हेड इंजरी और नेक इंजरी की। तो यदि आप हेड के नीचे कुछ सुरक्षित चीज़ रख सकते हैं या नेक के नीचे, तो ये मरीज के लिए बहुत हितकारी होता है। इस दौरान कई बार हम प्रयास करते हैं कि हाथों को खुद खोल दें, उसके दाँतों को खोल दें और इसके लिए हम तरह-तरह के प्रयास करते हैं, ताकत लगाते हैं और ऐसे में हमारे मरीज़ों की हड्डियाँ टूट जाती हैं, उनके दाँत टूट जाते हैं और डैमेज हो जाता है। तो आपको ऐसा कोई प्रयास नहीं करना, मरीज़ को सुरक्षित स्थान पे लिटाना है। यदि कुछ क्षणों में होश नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप पास के अस्पताल में भागिए और इसके लिए 108 एम्बुलेंस सबसे सुरक्षित विकल्प है। हमारा 108 की रीच हर जगह है। आप तुरंत मरीज को अस्पताल लेके जाइए। यदि कुछ क्षणों में मरीज को होश नहीं आया, वो उठ के नहीं बैठा है, तो आप स्टेटस की तरफ लैंड कर सकते हैं। तुरंत अस्पताल जाइए। Thank you so much, Doctor. This has been incredibly informative and helpful. We hope today's discussion helps listeners better understand epilepsy and how to support themselves or their loved ones, of course. Any final thoughts? मिर्गी असाध्य नहीं, मिर्गी अभिशाप नहीं। मिर्गी के मरीज को भी जीवन में वह हर काम करने का अधिकार है जो किसी अन्य व्यक्ति को है, चाहे वह पढ़ाई करना हो, चाहे वह नौकरी करना हो या शादी ब्याह करना हो। उनके भी बच्चे होते हैं, वे भी समाज में उतने ही सम्माननीय हैं जितने दुनिया के दूसरे लोग। धन्यवाद। Thank you, Doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.